Okay, good. So we will see today how to write a serial communication program using interrupt. And the program is, as we have seen the statement, take data from P1, send it to P2 continuously. Simultaneously, the data which you are taking from P1 port has to be given to serial COM port, and this has to be done continuously. You all have understood the program? क्या करना है? Because it is very important in an exam that you read statement, program statement clearly and try to figure it out what exactly is to be done. If necessary, draw diagram P1 port, P2 port. Just for your illustration, I'll just showing you. So we have to take data from P1 port and the same data you have to give it to P2, and at the same time you have two pins TXD, RXD. Okay, TXD is output pin, this is input pin. So give this data to this as well. Obviously RXD pin has nothing to do because it is used for receiving data, and in this program you are not receiving anything, you are just transmitting. But with this it is called as COM port, okay, communication port, COM port, right, serial communication that we are going to do it. Fine, this is what the program is. Has everybody got it very clearly what is to be done? Okay, fine. Now let us try to first develop a program. Now whenever, if you remember very clearly, we are going to use interrupt. Okay, so whenever we use interrupt, we have seen that we cannot start writing program from 0000, main program from 0000, right? Why we cannot start writing program from 0000? Because from 0000 to 0023, all these locations are used as a vector location for the interrupt. बराबर है? तो हम लोग ORG 00 पे जाएंगे और वहां से जंप करेंगे मेन प्रोग्राम पे, जो मेन प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे शायद 30 से 40 से कहीं पे से वी कैन स्टार्ट अ मेन प्रोग्राम. गॉट इट? तो दैट इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ इंटरप्ट प्रोग्राम, जब भी कभी भी आपको इंटरप्ट से प्रोग्राम लिखने को बोला जाएगा तो ऑलवेज ORG 00 पे एस जंप करो टू सम लोकेशन एंड दैट लोकेशन को आप लेबल दो मेन. बराबर? ORG 00 एस जंप मेन, then go to some other location ORG 30 and there you write main program. Correct? Then now we are using serial interrupt and serial interrupt का vector location है 0023. So at 0023 मतलब ORG 0023 H and there you have to write your ISR. ठीक है? तो ISR में आपको क्या क्या करना है आपको पता है? ISR में क्या करना है आपको? पहले चेक करना पड़ेगा. Now you can write it at 0023 or you can again jump from there, like in this the same thing has been done. See, if you have noticed it clearly, and I told you as well, that at every vector location you have only 8 bytes. बराबर है? 0000 रिसेट है, 0003 और 0003 के बाद आता है कौन सा? 000B. तो 3 और B के बीच में 8 बाइट्स आपके पास है ISR लिखने के लिए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ISR बड़ा होता है तो वो 8 बाइट में हम लोग फिट नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, तभी जंप वहीं से वहां वो लोकेशन पे जंप लिखते हैं और जंप लिख के एक्चुअल ISR जो है वो किसी और ही लोकेशन पे लिखते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर अबाउट दिस? इज एनी डाउट? नहीं ना? तो अगर ISR बड़ा है तो हम लोग वेक्टर लोकेशन पे ISR नहीं लिखते हैं, वेक्टर लोकेशन पे भी जंप मार के किसी और लोकेशन पे जाते हैं और वहां पे ISR लिखते हैं.
जो ये प्रोग्राम में किया गया है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम जब अगर लिखोगे, ओके, आईएसआर में क्या क्या लिखना पड़ेगा अपने को? आईएसआर में आप पहले चेक करोगे कि ये जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है वो ट्रांसमिशन की वजह से है या रिसेप्शन की वजह से है, बराबर है। नाउ यहां पे रिसीविंग का कोई मामला है नहीं, है ना, हम लोग ट्रांसमिट की वजह से ही होगा, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट टू चेक वेदर द इंटरप्ट व्हिच इज जनरेटेड इज ड्यू टू आरआई और टीआई. So now here the interrupt is going to be generated because of TI only, because you are sending, बराबर है. So definitely it will be due to TI. So interrupt जब generate होगी तो आप क्या करोगे? TI को जब वो पास होगा तो आप next character लोगे, है ना, to be sent. Anyway, I'll show you how it is done. मेन प्रोग्राम में आपको क्या क्या करना है? इंटरप्ट प्रोग्राम जब रहता है तो सबसे पहले इंटरप्ट आपको इनेबल करके लेना है. तो कौन सा रजिस्टर आप कॉन्फ़िगर करोगे? IE रजिस्टर कॉन्फ़िगर करोगे, बराबर है. फिर आपको बॉड रेट सेट करनी है. टाइमर, इसमें टाइमर रजिस्टर आता है. बॉड रेट में टाइमर के लिए टीमोड कॉन्फ़िगर करके लेना है, बराबर है. तो IE रजिस्टर भी इन्वॉल्व है, टीमोड रजिस्टर भी इन्वॉल्व है, और सीरियल कम्युनिकेशन है, इसके लिए एसकॉन भी इन्वॉल्व होगा. तो कौन कौन से रजिस्टर आपको ऐसे फास्ट प्रोग्राम करने पड़ेंगे? IE रजिस्टर प्रोग्राम करना पड़ेगा मेन प्रोग्राम में, टीकॉन प्रोग्राम करना पड़ेगा, एसकॉन प्रोग्राम करना पड़ेगा. अब बॉड रेट अगर सेट करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? मोड 1 में कॉन्फ़िगर करके लेना पड़ता है. टाइमर आपको मोड 1 में, मोड 2 में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना, ऑटो रिलोड मोड में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. और जो TH का वैल्यू है 9600 के लिए, वो आपको कैलकुलेट करके लेना पड़ता है. TH1 वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट, आई हैव टॉट यू लास्ट टाइम, है ना. तो 28800 डिवाइडेड बाय 9600, जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस करके लिखोगे तो TH का वैल्यू सेट हो गया. या फिर subtract it from 256, whatever value that you get, convert it into hex, and that value you put it in the TH register, बराबर. फिर आपको टाइमर को ऑन भी करना पड़ेगा टू मेक इट वर्क. टाइमर को ऑन भी करना पड़ेगा. टाइमर ऑन आप करते हो कैसे? TR1 से, सेट भी TR1 से टाइमर ऑन करोगे, और एक बार टाइमर ऑन करोगे तो उसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है. तो फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉड रेट मिलना चालू होगा, मतलब वो क्लॉक पल्स मिलना चालू होगा, बॉर्ड के जो अभी अपने जो भी आपने कैलकुलेट करके लिए वो मिलना चालू होगा. तो टाइमर को ऑफ करने की जरूरत नहीं है. और एक बार टाइमर ऑफ करोगे, चालू करोगे, तो आपको सबसे पहले बार क्या करना है? P1 से डेटा लेना है, P2 में भेजना है. P1 से डेटा लेना है और P2 में भेजना है. एंड साइमल्टेनियसली कहां पे भेजना है? P1 से डेटा लेना है, एक्यूमुलेटर में लेना है, और SBUF में भेजना है. और एक बार SBUF में भेजोगे, देन यू विल हैव टू वेट टिल द इंटरप्ट इज जनरेटेड. जो विदाउट इंटरप्ट आप प्रोग्राम लिख रहे थे उसमें आप क्या कर रहे थे? आप TF खुद चेक कर रहे थे, TF नहीं. TI फ्लैग सेट हुआ कि नहीं, JN भी TI लिख रहे थे, याद है ना. कंटिन्यूसली सेंडिंग A का प्रोग्राम, या कंटिन्यूसली यस जो प्रोग्राम लिखा था, तो उसमें आप चेक करते थे कि TI सेट हुआ है कि नहीं. अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप TI सेट हो गया तो इंटरप्ट जनरेट होगी. इंटरप्ट जनरेट होगी तो जंप मारेगा किधर? 0023 पे. वहां पे सीरियल का इंटरप्ट लिखा रहेगा, और फिर वहां पे लिखोगे आप कि अगर हुआ है तो TI को आप वापस क्लियर करो, और फिर नेक्स्ट आप डेटा है वो ले लो और आगे चलो, करते रहो ये चीज. तो सेम थिंग हाउ इट इज डन, आई विल शो इट इन द प्रोग्राम. ORG000H LJump में समझ में आया? आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस, राइट? LJump में ORG23 LJump serial. समझ में आया? Serial is what? Serial is a label given to your ISR program where it is written serial LJump serial. हाँ, ओके, यहां पे. तो जब इनपुट आएगा, मतलब इंटरप्ट आएगी,
तो क्या करना है, ये हमने लिखा इधर है, ठीक है, ओके फाइन। ORG30 मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स, ORG30 पे लिखा आपने मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम में आपने सबसे पहले, हाँ ये एक स्टेप रह गया था कि P1 is a input port and always rule of a thumb is whenever you are configuring anything, any port or any pin as an input pin or input port, you have to first write 1 to it या FF to the port so that you configure that port as an input port, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोग्राम में कोई भी चीज, आपको स्विच का स्टेटस रीड करना है या पोर्ट पे कुछ डेटा रीड करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर राइट 1 टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप ये भूल जाते हो तो आपको मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मूव P1 FF। और एक है, जब भी आप असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लिख रहे हो और हेक्स वैल्यू इफ इट स्टार्ट्स विद द लेटर, नंबर नहीं, लेटर ABCDEF, तो पीछे 0 लिखना है, ओके। असेंबलर को पता चलता है कि FF इज अ नंबर, ठीक है, तो 0 लिखना है उससे पहले, रिमेंबर, ओके। तो ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। क्या किया हमने, ये इंस्ट्रक्शन में हमने पोर्ट को इनपुट पोर्ट करके कॉन्फ़िगर किया। तो कमेंट लिखते समय आप लिखोगे यहां पे कॉन्फ़िगर इनपुट P1 एज अ इनपुट पोर्ट विच इज गिवन देयर, फाइन। अब आपको कॉन्फ़िगर करना है टाइमर। तो टाइमर रजिस्टर को 20 वैल्यू डाला। 20 कैसे आया, एवरीबॉडी नोज। अगर नहीं है तो जिनको पता है उनसे पूछो, सिंपल है। 20 कैसे आया, टीमोड। देन ये TH1 में FD कैसे आया, ये तो कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम हमने। TH में FD कैसे आया, है ना, दैट इज FD मतलब 28,800 डिवाइडेड बाय 9,600, आंसर इज 3, करेक्ट ना। तो 256 माइनस 3, that is 253. 253 converted into hex, that is FD. So that value you have to put it in TH flag, TH1 flag. Since it is FD later है, इसके लिए पहले 0 लिखा। Immediate addressing mode है तो हमने 0 लिखा, फिर वो FD लिखा, ठीक है। ये हो गया। फिर SCON करना है ना आपको, सीरियल कम्युनिकेशन। उन्होंने लिखा है किधर सीरियल मोड कौन सा यूज करना, नहीं लिखा उन्होंने, है ना। आप अपने इससे सीरियल कम्युनिकेशन मोड, विच मोड वी आर गोइंग टू यूज एक्सटेंसिवली, आई टोल्ड यू मोड 1 सीरियल कम्युनिकेशन का, बराबर है, जहां पे टाइमर का वैल्यू डिसाइड करता है बॉड रेट क्या होने वाला है। मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। मोड 1 शिफ्ट रजिस्टर मोड, देयर ऑल्सो baud rate is fixed, oscillator by 12। मोड 1 और 3 का वेरिएबल है 9 बिट और 9 बिट, है ना। एनीवे, तो मोड 1 में कॉन्फ़िगर किया इसलिए 50 आ गया। IE में क्या किया, यहां पे इंटरप्ट इनेबल करके लिखा। नाउ रिमेंबर, ये अगर ऊपर नीचे भी होते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पहले आपने टीमोड किया, बाद में TH किया, ये किया, ऊपर नीचे किया तो भी चलेगा। तो गेटिंग इट, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। फिर टाइमर ऑन किया, चालू किया टाइमर। टाइमर ऑन नहीं करते तो बॉड रेट मिलेगा नहीं, टाइमर ऑन नहीं हुआ तो बॉड रेट कैसे जनरेट होगा। टाइमर ऑन किया, फिर आपने क्या किया, A1 का डेटा लिया, A में डाला, P1 का डेटा लिया, एक्यूमुलेटर में डाला। डायरेक्टली P1 टू P2 नहीं भेज सकते हम लोग, डेटा ध्यान में रखना, नहीं तो मूव P2, P1 लिख के खराब हो नहीं, पहले एक्यूमुलेटर में लेना पड़ता है, ओके। तो एक्यूमुलेटर में लिया, फिर वो डेटा हमने एक्यूमुलेटर से SBUF में भेजा। ट्रांसमिशन चालू हो रहा है और एट द सेम टाइम एक्यूमुलेटर का डेटा मैंने P2 में भी भेजा, क्योंकि वही बोला था ना उन्होंने, जो डेटा आएगा P1 से P2 को भी भेजना है और सीरियल पोर्ट पे भेजना। तो वो करेक्ट किया और SJump लिखा बैक, SJump लिखा बैक। क्यों, वापस करते रहना ना, तो SJump लिखा बैक पे। अब ORG 00100 पे
मैंने इंटरप्ट ISR लिखा। ठीक है, जब आपने एक्यूमुलेटर से डेटा SBUF में भेजा, 8051 का UART जो है अपना काम करना शुरू करता है। वो आपके लिए वेट नहीं करता है, अरे यहां से डेटा भेज रहे वगैरह, वो करना अपना काम चालू कर देता है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि जो डेटा है वो चला गया, 8 के 8 बिट्स कंप्लीट हो गए। 8 के 8 बिट्स कंप्लीट होते हैं तो आएगी, यहां पे जंप हो जाएगा सीरियल का, बराबर। इंटरप्ट जनरेट होगी, इंटरप्ट जनरेट होगी तो प्रोग्राम यहां पे जंप मारेगा। अब वो चेक करता है JB TI jump to trans, trans is अंदर लेबल, JB TI trans jump if TI bit is set here, JNB नहीं है, JB, that means bit is set। अगर इंटरप्ट जनरेट हुई हो तो बिट सेट होगा, तो आपको जंप करना है इधर, मतलब 8 के 8 बिट गए ना, फिर आपको क्लियर TI करना है, TI जो सेट हुआ था उसको क्लियर करना है। RETI रिटर्न, इंटरप्ट से वापस जाओ। ठीक है, RETI दोनों जगह पे लिखा है, इंटरप्ट से वापस जाओ। इंटरप्ट से वापस जाओ मतलब ऑब्वियसली इट विल वेट फॉर सेकेंड, क्योंकि आपने यहां पे लूप में डाल के ही रखा है ना, तो सेकेंड लेटर जो आया P1 से उसके लिए वेट करेगा फिर से इंटरप्ट जनरेट होने के लिए। तो जब इंटरप्ट जनरेट हुई तो आपने क्या किया, इंटरप्ट जनरेट हुई तो JB आपने सेट किया, JB चेक किया और फिर क्लियर किया TI को और वापस वेट करने चले गए आप। लेकिन अगर नहीं हुआ इंटरप्ट जनरेट, तो आपने क्या करना है, मूव A, SBUF। SBUF मतलब सी, TI सेट नहीं हुआ लेकिन इंटरप्ट जनरेट हुई, इसका मतलब क्या हुआ, TI इंटरप्ट तो जनरेट हुई है, इसके लिए वो इधर आ गया ना, लेकिन TI सेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रिसीव की वजह से हुआ इंटरप्ट। इंटरप्ट दो आपको कंडीशन क्या है, आइदर रिसीव RI फ्लैग सेट हुआ तो भी इंटरप्ट आती है, TI फ्लैग हुआ इसलिए तो भी इंटरप्ट आती है। तो इसका मतलब है इंटरप्ट पे तो गया रूटीन पे, लेकिन TI फ्लैग सेट नहीं है, इसका मतलब है RI फ्लैग सेट हुआ था करके इंटरप्ट जनरेट हुई। तो RI मतलब रिसेप्शन हुआ, दो प्रोग्राम में लिखा नहीं है रिसीविंग कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मान लो कि कॉम पोर्ट पे कुछ डेटा आ गया होगा बाहर से, इसके लिए इंटरप्ट आई। तो मैंने क्या करना है, SBUF में डेटा आया, वो एक्यूमुलेटर में लिया, नाउ क्लियर RI, क्योंकि RI की वजह से सेट हुआ था ना, क्लियर RI रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। तो उस प्रोग्राम में यह भी लिखना चाहिए था उन्होंने कि एट द सेम टाइम इफ द डेटा इज रिसीव्ड then take it to accumulator or do whatever you want to do it with it. You got the entire program? You got the entire program? Main program में हमने क्या किया? Let us now summarize what we have done in a main program. Main program में हमने पहले सारे कॉन्फ़िगर करके ले लिए। IE कॉन्फ़िगर किया, SCON कॉन्फ़िगर किया, TMOD कॉन्फ़िगर किया, TH में डेटा डाला और टाइमर को ऑन किया और पोर्ट को इनपुट पोर्ट करके कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ये 6 चीजें किए हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में। नंबर 1, पोर्ट को इनपुट पोर्ट करके कॉन्फ़िगर किया, फिर आपने टाइमर को कॉन्फ़िगर किया, TMOD को कॉन्फ़िगर किया, IE को कॉन्फ़िगर किया, SCON को कॉन्फ़िगर किया, TH में डेटा डाला और TR1 किया, मतलब टाइमर को ऑन किया, रिसेप्शन ट्रांसमिशन सब चालू हो गया। फिर आपने पोर्ट 1 से डेटा लिया, एक्यूमुलेटर में डाला, एक्यूमुलेटर का डेटा
P2 में डाला, सेम एक्यूमुलेटर का डेटा SBUF पे डाला, और उतना करने के बाद आपने नेक्स्ट जंप मारा और एस जंप बैक किया फॉर डूइंग इट कंटिन्यूअसली. Meanwhile, if the interrupt is generated, it will jump here. वहां पे आपने क्या किया, चेक किया कि ये जो इंटरप्ट आया है किस वजह से आया है, ट्रांसमिशन की वजह से आया है या रिसेप्शन की वजह से आया है. वो कैसे चेक किया, JBTI यूज करके, मतलब JB जंप पे बिट इज सेट, TI बिट इज सेट. अगर TI बिट सेट है इसका मतलब है SBUF में जो आपने डाला था वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया है. तो अब आप क्या करोगे, जो बिट सेट हुआ है TI उसको रिसेट करोगे, क्लियर करोगे और जंप रिटर्न टू फ्रॉम द इंटरप्ट लिखोगे. ठीक है ना, ये दो सेंटेंसेस. और अगर सेट नहीं हुआ इसका मतलब है जो इंटरप्ट जनरेट हुई थी वो RI की वजह से थी, तो अब RI को क्लियर करोगे और फिर बैक जो डेटा आया है SBUF का वो एक्यूमुलेटर में लोगे और फिर क्लियर RI करके RETI करोगे. So that is what the program is. You do not have to by heart, and even if you try to, you will certainly miss one of the other steps. ये याद करने की जरूरत नहीं है. मैंने जैसे सिखाया आपको कि पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट पढ़ो, क्या करना है वो ध्यान में लो, फिर उस प्रोग्राम में कौन से रजिस्टर्स SFRs इन्वॉल्व है वो देखो, उनको प्रोग्राम करो. तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे सोचोगे तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर लिखोगे, राइट?